Hello everyone, myself Yash Kaur. I am an assistant professor of botany at RPS Degree College, Mahendragarh. In our today's video, I am going to discuss about a very important topic in the plant physiology, that is the C3 cycle or Calvin cycle. C3 cycle or Calvin cycle is the part of photosynthesis. In the process of photosynthesis, there are particularly two steps. One are the light phase and another is the dark phase. During the light phase of the photosynthesis, which is the light dependent phase, the plants just produces the oxygen gas which is liberated outside into the environment. Along with the oxygen gas in the light reactions, the other products are the ATP and the NADPH2. The ATP and NADPH2 are the energy currency molecules which will be used in the dark reactions. Okay, so the raw material water is used during the light reactions. Light reactions occurs inside the chloroplast of the cell, and even in the chloroplast, in the thylakoid membrane, the light reaction generally occurs. The dark phase, the next phase of the photosynthesis is dark phase, which is independent of the light. So in the independent phase of the light, that is the dark phase, the carbon dioxide, which is the another raw material, that is going to be fixed. So the method of fixation of the carbon dioxide varies from plant to plant. So depending upon the fixation mechanism, there are different plants like C3 plant, C4 plants and the CAM plants. So the CAM, C4 and C3 plants undergo the process of carbon fixation, having different substrate which are going to accept the carbon dioxide. So particularly today we are going to talk about the C3 plants which have a mechanism that is called C3 cycle proposed by a scientist Calvin. उन्हीं के नाम पे इसको Calvin cycle बोला जाता है. So in C3 plants there is a substrate, 5 carbon substrate, which is a sugar of 5 carbons, the ribulose 1,5 bisphosphate. So this sugar having 2 phosphate, one at the first position and one at the 5th position. So this substrate RU15BP accept the CO2 and by the process of carboxylation and the enzyme Rubisco forms the first stable product 3-phosphoglyceric acid. The 3-phosphoglyceric acid is the first stable product, okay, and having carbon number 3, 1, 2, 3. So since the carbon number is 3, that's why this cycle is called C3 cycle. The first stable product, that is 3-phosphoglyceric acid, having a carbon number 3, that's why it is called the C3 cycle. It occurs in the 3 steps: carboxylation, reduction and regeneration. In carboxylation, the CO2 is fixed. In reduction, the food is prepared. And if the food is prepared and the RU15BP will be completely exhausted, if it will be, so there will be no glucose formation further. एक बार अगर RU15BP exhaust हो जाता तो दोबारा से नहीं बन पाता glucose. So there should be necessarily a regeneration of the RU15BP. So there are 3 steps: the carboxylation, reduction means formation of the glucose, and third one, the regeneration. After forming the glucose, the RU15BP itself get regenerated so that another CO2 molecule can be accepted by this RU15BP, and the process of formation of the food, that is called the dark phase via C3 method, should be continued. So let's just discuss this cycle in detail. So here we are going to discuss the Calvin cycle or the C3 cycle. It is named as Calvin cycle due to the discoverer name. The discoverer of this was the Calvin in 1960. So they discovered this cycle, that's why it is also called the Calvin cycle. There are total 3 steps in the Calvin cycle. One is the carboxylation, in which simply the CO2 is accepted by a substrate, that is the RU15BP. This is a 5 carbon substrate, a sugar, the ribulose 1,5-biphosphate, having 2 phosphate, one at the first position and second at the 5th position. This is the accepting molecule. So sometimes this is asked that which is the primary acceptor of CO2 in the C3 cycle or the C3 plant. So it should be RU15BP. It will accept the CO2. CO2 is having 1 carbon. Okay. There will be total 6 molecules of the RU15BP and the 6 molecules of the CO2 as well. Water is also added in this reaction and the enzyme is Rubisco. The ribulose 1,5-bisphosphate, CO stands for carboxylase and oxygenase. This enzyme Rubisco is the most abundant enzyme on the earth because it is present in each and every plant, each and every leaf. Along with the plants, it is also present in the marine ecosystem like ocean and seas, in algae which are photosynthetic. So this enzyme is present inside them. So this is the most
most abundant enzyme on the earth, the Rubisco. And it is a dual nature enzyme. The substrate is ribulose 1,5-bisphosphate. CO stands for carboxylase and oxygenase. It can undergo carboxylation as well as the oxygenation. If the CO2 concentration is very higher or enough, is higher we can say, then it will be act like carboxylase. But if the CO2 concentration is very low CO2 concentration, so in those conditions it will be act like oxygenase enzyme and leads to the activity of oxygenation instead of the carboxylation. तो वहां पे carboxylation नहीं कराएगा, oxygenation कराएगा. So that will lead to a different process that is called photorespiration. So photorespiration will be a wasteful process. उसमें food नहीं बनता. That will be a wasteful process that we will discuss separately, the photorespiration. So whenever it will act like only carboxylation, then only the C3 cycle will occur. First step is carboxylation. Second step is reduction. Once the RU15BP is carboxylated, it will form the 3-PGA. First stable product बनता है 3-phosphoglyceric acid. This is the first stable product. 12 molecules बनते हैं. 6 molecules of RU15BP से. अभी ये reaction हम पढ़ेंगे किस तरह से बनते हैं हम देखेंगे. 6 molecules CO2 के, they will give 12 molecules of the 3-PGA. Third is the position, not the molecules. Okay. थर्ड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट है, 3 कार्बन है इस कंपाउंड में, 3 कार्बन का ये कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल. तो इसका रिडक्शन होता है बाय डिफरेंट स्टेप्स, फाइनली इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बन जाता है. अब हमें तो फूड ही बनाना था डार्क फेज में. आवर फेट ऑफ द डार्क फेज इज कंप्लीटेड. So if the continuously only carboxylation and reduction will occur and the glucose is forming from RU15BP, so there will be a time where this RU15BP will be exhausted. एक टाइम के बाद ही exhaust हो जाएगा. But ऐसा नहीं होता, regeneration भी होता है. Regeneration of what? खत्म क्या हुआ है? RU15BP. तो इसी का regeneration होता है. Okay, this is the third step. After forming the glucose, the RU15BP is regenerated so that it can accept the another CO2 to form the another molecule of the glucose. So it's a complete cyclic movement having carboxylation, reduction and regeneration. So very quickly, let's just discuss them in detail. Okay, so here we are having this C3 cycle, or we are going to discuss the C3 cycle in detail. So the mechanism of dark phase, the C3 mechanism of dark phase starts with a substrate molecule, that is the RU15BP. We will start from this place. Here will be RU15BP, the ribulose 1,5-bisphosphate. It is a 5-carbon compound and we total take a 6 molecules of it. Okay, total 6 molecule लिए जाते हैं इसके. The first step is called carboxylation. ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होगा, एंजाइम होगा रुबिस्को. एंजाइम है रुबिस्को. रुबिस्को इज द एंजाइम. 6 CO2 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 6 ही मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं CO2 के. ठीक है, और CO2 है 1 कार्बन कंपाउंड. CO2 is a 1 carbon compound. RU15BP is a 5 carbon compound. Water is also added in this reaction. So if there are 6 molecules of the RU15BP, 6 molecules of the CO2, so there should be 6 molecules of the water as well. ठीक है, molecules यहाँ पे सभी equal होने चाहिए. This is the first step which is called carboxylation. So what would be the product? We will discuss. So we have taken the RU15BP. Okay, this is the RU15BP. Okay, this is 1 RU15BP. We will talk about the 1 molecule only. The same process will be repeated for all 6 molecules. So this is 1 molecule of the RU15BP. Let me count 1, 2, 3, 4 and 5 carbons. It is having 5 carbon. At the first position the phosphate is there, and at this position the phosphate is also there. So it is RU15. 1 or 5th position पे phosphate है. Ribulose 1,5-bisphosphate या biphosphate. Okay, we will add CO2 in that. And along with this CO2, the water is also added. So we are taking only 1 molecules here. 1 here, 1 here and 1 here.
because we are studying the general reactions, okay, not for all 6 molecules. The same process will be repeated for the another 5 molecules also. अगर एक मॉलिक्यूल के साथ यही काम हो रहा है तो बाकी 5 के साथ भी वही होगा, ठीक है. CO2 ऐड करना है, वाटर ऐड करना है. एक जनरल कंसेप्ट देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये समझ में आ गया तो पूरा स्टेप समझ में आ जाएगा. एक 5 कार्बन का कंपाउंड है Ru15BP, एक 1 कार्बन का कंपाउंड है CO2. अगर मिलकर एक एक मॉलिक्यूल है, अगर मिलकर ये 6 कार्बन का कंपाउंड बनाए, ठीक है. एक 5 कार्बन की यूनिट है, एक 1 कार्बन की यूनिट है. ये सपोज 5 है, ये छोटा सा 1 है. अगर ये मिलकर बनाए किसी चीज को, 6 कार्बन की चीज को, तो ये एज ए 1 यूनिट तो बनाएंगे जॉइंटली, तो उसका भी एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है. अब मैं आपसे कहूं कि 6 कार्बन कंप्लीट नहीं बन रहा, 2 इक्वल हाफ्स में बन रहा है, ठीक है. इस तरह से बने, ये हाफ, यहाँ पे इसका हाफ, फिर इधर हाफ और ये हाफ, ठीक है. ये टोटल जो कंपाउंड बन रहा था इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 6 कार्बन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में. 3 कार्बन 3 कार्बन. तो अगर 5 कार्बन और 1 कार्बन का एक साथ बनता, 6 कार्बन का ही कंपाउंड बनता, तो उसके एक ही मॉलिक्यूल बनते. पर अब बन रहा है क्योंकि पार्ट्स में 3-3 कार्बन के 2, तो इन 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स के भी एक एक ही मॉलिक्यूल बनेंगे. ये चीज हमें ध्यान रखनी है. इनका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल. 6 कार्बन का कंप्लीट अगर बनता, इफ इट विल बी फॉर्म्ड, सो इट विल बी 1 मॉलिक्यूल, ठीक है. यहां सब एग्री होनी चाहिए. सेकंड थिंग, क्योंकि पार्ट्स में बन रहा है 3-3 कार्बन, तो 3-3 कार्बन के भी एक एक मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है. अगर मैं आपसे कहूं ये 3 कार्बन कंपाउंड सेम है, 2-3 कार्बन के कंपाउंड बने ना, एक ये, सपोज ये X है, ये Y है. मैं आपसे कहता हूं X और Y सेम है, तो क्या ये नहीं कह सकते कि X के 2 मॉलिक्यूल बने या Y के 2 मॉलिक्यूल बने, क्योंकि X प्लस Y 2X हो गया ना, यानी X के ही डबल कर लीजिए मॉलिक्यूल. तो इस 3 कार्बन कंपाउंड के ये जो बनता है, इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है. किस तरह से, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं. हमने लिया एक 5 कार्बन कंपाउंड, एक 5 कार्बन कंपाउंड, एक 1 कार्बन कंपाउंड, एक एक मॉलिक्यूल. 1 कार्बन CO2 है, 5 कार्बन राइबोलोज 5 बिस्फोस्फेट है. इसका 6 का नहीं बना, 3 कार्बन के 2 बने, एक एक मॉलिक्यूल बने. कैसे बने, जस्ट अभी मैंने बताया, ठीक है. ये क्योंकि सेम है तो मैं कह देता हूं 3 कार्बन वाले के 2 मॉलिक्यूल बन गए सीधे. लेकिन 2 मॉलिक्यूल कब बने, जब एक एक मॉलिक्यूल इनका लिया. इनका एक एक लिया तो प्रोडक्ट जो बनना है 3 कार्बन का, उसके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बने. थ्री कार्बन का बना, बट उसके 2 मॉलिक्यूल बने भाई, ठीक है. अब इनको हम 6 टाइम्स करते हैं, 6 मॉलिक्यूल इसके, 6 इसके, तो इसको भी 6 टाइम्स कर दीजिए, तो फिर 3 कार्बन वाले के 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे भाई. 3 कार्बन वाले के 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे. ये चीज समझनी है हमें कि 6 मॉलिक्यूल से 12 मॉलिक्यूल कैसे बन गए. अगर ये सीधा 6 ही कार्बन का बनता ना कंपाउंड, तो इसके 6 ही मॉलिक्यूल बनते, लेकिन ये 3 कार्बन का बन रहा है, 3 + 3 दोनों सेम है, तो हम डबल कर रहे हैं. 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल दोनों सेम है, तो 3 कार्बन के 6 + 6 12 मॉलिक्यूल्स बन गए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन द कार्बोक्सिलेशन. यही ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलेशन पूरा क्लियर हो जाता है. चलिए अब कार्बोक्सिलेशन को हम करते हैं कंप्लीट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द कार्बोक्सिलेशन. नाउ वी विल कंप्लीट इट. Okay, so here we are. Okay, now we have taken the CO2, so we are taking 6 molecules. चलिए ये इनको जब मर्ज करते हैं तो देखिए क्या बनता है. यहां से लिखना शुरू करेंगे, CH2OP as it is. Okay, next I am writing this what, CO2 का भी हम कंजर्व रख रहे हैं. H2O में से 2 H ले लिए, दिस इज लाइक दिस, 2 H और एक O. H2 है, 2 H ले लिए, एक H यहां लगा दिया, ऑक्सीजन ऑलरेडी है, एक H यहां लगा दिया. H2O में से H2 खत्म हो गया, O बचा है, ओनली O बचा है, ठीक है. ये पोजीशन पे 2 H मैंने फिक्स कर दिए. नेक्स्ट है आपका CHOH. CHOH में O रखा, केवल O रखा, ठीक है. 2 हाइड्रोजन इसके नहीं रखे अभी हमने, यहाँ पे केवल O रखा है, इसके 2 हाइड्रोजन होल्ड हैं, ठीक है. एक ऑक्सीजन में वाटर से ले आया, तो वाटर तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है. 2 हाइड्रोजन यहां ले गया था इस पोजीशन पे, और ऑक्सीजन अब यहां ले लिया, ये खत्म हो गया. बचा क्या यहाँ पे, बचा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन. ऑक्सीजन को तो लिख चुके हैं हम, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को लिख देते हैं हम, तो हमारे पास होल्ड क्या रह गई, एक हाइड्रोजन होल्ड रह गई अभी हमारे पास. और शुरू के 3 कार्बन हमने खत्म कर दिए, लिख दिए. ये पहला कंपाउंड बन गया,
ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंपाउंड, 3 कार्बन का कंपाउंड है ये। आगे बढ़ते हैं इससे आगे। चलिए रिवर्स लिखते हैं इसको। अब 5th कार्बन को पहले लिख रहा हूं मैं CH2OP, ठीक है, फिर इस कार्बन को लिख रहा हूं CHOH। अब यहां तो ये तो खत्म हो चुका ना आगे, लेकिन बचा क्या है, बची है CO2 और एक हाइड्रोजन। तो CO2 और एक हाइड्रोजन यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बचा है, ये भी लिख दिया। देखिए पूरा बैलेंस हो गया है। बहुत अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुका होगा आपको, ध्यान से सुनेंगे तो। वाटर भी बैलेंस कर दिया था, 2 हाइड्रोजन यहां दे दिए थे, एक ऑक्सीजन यहां दे दी थी, ठीक है। और जो CO2 है वो भी बैलेंस हो गई आपकी, CO2 भी फिक्स हो गई, वाटर भी फिक्स हो गया जो ऐड हुआ था। इस रिएक्शन में एंजाइम है रुबिस्को, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन कराया ना, CO2 ऐड करी, कार्बोक्सिलेशन कराया। रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव कर रहा है। अब ध्यान से देखिए जो प्रोडक्ट बना, ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड बन गया, 3 कार्बन का एक बन गया, ठीक है। इनके 6-6 मॉलिक्यूल है ना, तो इन दोनों के भी 6-6 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये 3 कार्बन का कंपाउंड क्या सेम नहीं है? दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों सेम है। इस 3 कार्बन कंपाउंड को बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो ये भी 3PGA हो गया भाई। 3PGA के 6 मॉलिक्यूल, ये 6, ये तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ द 3PGA। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ द 3PGA आर दस फॉर्म्ड। इस तरह से हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स बन गए 3PGA के, ठीक है। चलिए उसको हम साइक्लिक फॉर्म में लिख देते हैं। यहां पे हम इसको लिखते हैं, तो हमारे पास बना 3PGA, 12 मॉलिक्यूल्स। कैसे बने मैं बता चुका हूं कई बार। 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलेशन के बाद, पहले स्टेप के बाद इतना है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम है और 12 मॉलिक्यूल्स बन गए, इसलिए पहला प्रोडक्ट में 3 कार्बन है तो ये C3 साइकिल कहलाती है। नेक्स्ट आपका जो 3PGA है, ठीक है, इस पे एक एंजाइम वर्क करेगा काइनेज। काइनेज क्या करता है? ATP को डीफॉस्फोराइलेट करता है, ठीक है। ATP को डीफॉस्फोराइलेट करता है तो ADP में कन्वर्ट कर देता है। एडिनोसिन ट्रायोस फॉस्फेट को एडिनोसिन डायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया और फॉस्फेट दे दी इसको, ठीक है। फॉस्फेट दे दी सबस्ट्रेट 3PGA को। अब फॉस्फेट जब जी तो वाटर का लिबरेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए फॉस्फेट होती है H3PO4, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होती है H3PO4। H3PO4 में से वाटर अगर निकल जाए तो क्या बचे? 2 हाइड्रोजन निकल गए ना, तो एक H बचा। PO4, एक ऑक्सीजन निकालना है तो 3 ऑक्सीजन बचे, तो क्या बचता है? HPO3। तो जब भी ATP अपनी फॉस्फेट डोनेट करते हैं तो सबस्ट्रेट के पास तो HPO3 ही जाती है। सबस्ट्रेट के पास क्या जाएगी? HPO3, ना कि H3PO4, ध्यान रहे, ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ वाटर। चलिए अब 3PGA के पास, आपका जो 3PGA था इसके पास आ गई फॉस्फेट। एंजाइम है काइनेज। अब ATP कहां से आए भाई? क्वेश्चन आता है ATP कहां से आए? लाइट रिएक्शंस का प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन गैस प्लस एनर्जी। जो एनर्जी लाइट रिएक्शंस में बनती है वही एनर्जी यूज होती है डार्क रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखिए हम ATP यूज कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए एक ATP, तो 12 मॉलिक्यूल के लिए 12 ATP, ऐसे ही 12 ADP निकल जाएंगे, एडिनोसिन डायोसफॉस्फेट, और 12 ही फॉस्फेट अंदर आएंगे, तो 12 ही वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, ठीक है। तो 3PGA में सेकंड स्टेप, यहां से रिडक्शन शुरू हो जाता है भाई। अब 3PGA जब तक फूड नहीं बना देगा ना, तब तक सारा स्टेप रिडक्शन होगा, तब तक सब कुछ क्या होगा? रिडक्शन में काउंट होगा। कार्बोक्सिलेशन सिंगल स्टेप था। चलिए 3PGA के साथ क्या होता है देखेंगे हम। 3PGA, हमारा 3PGA फॉर्मूला है CH2OP CHOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दिस इज 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ATP ADP, HPO3 आएगा, ठीक है, सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट पे। यहां पे HPO3 भाई हम गेन करेंगे कहां पे? फर्स्ट पोजीशन पे। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट है। फर्स्ट में फॉस्फेट आए तो ये हाइड्रोजन, ये H और ये HPO3 मिलके बना लेंगे H2PO3, ठीक है। और ब्रैकेट में H2PO3 को ब्रैकेटेड P भी लिखा जा सकता है,
ठीक है, हम इस तरह से डोनेट करते हैं इस फॉस्फेट को जो कि यहाँ थी ऑलरेडी। ठीक है, ये भी H2PO3 है। दो चीजें ध्यान रखेंगे, तीन चीजें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होती है H3PO4, एटीपी जब देता है H3PO4 में से वाटर निकल गया तो एटीपी देता है HPO3, और H2PO3 को हम ब्रैकेटेड फॉस्फेट लिखते हैं। ये तीन चीजें हैं। तो यहाँ पे जब ये P है इसका मतलब है H2PO3। 2 कहां से हो गया, एटीपी ने तो HPO3 दी था, तो 2 कहां से हो गया, ये हाइड्रोजन लेके H2PO3 हो गया। तो इस तरह से अब 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट, थर्ड पोजीशन पे भी फॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1,3-बाई-PGA, 2 फॉस्फेट हो गई ना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो गया 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। एंजाइम हुआ काइनेज, एटीपी यूज हुए, सेकेंड स्टेप, वेरी सिंपली। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, नेक्स्ट जो है 1,3-बाई-PGA, 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये रिड्यूस होंगे एल्डिहाइड्स में। एसिड रिड्यूस होते हैं एल्डिहाइड्स में। ठीक है, एसिड रिड्यूस होते हैं एल्डिहाइड्स में, ध्यान रखिएगा। तो ये होगा रिड्यूस। रिड्यूस कैसे होता है, हाइड्रोजन को गेन करके, ये सबस्ट्रेट हाइड्रोजन गेन करके रिड्यूस होगा। तो हाइड्रोजन जब आती है, ठीक है, किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड होती है तो एंजाइम होता है हाइड्रोजिनेज। ठीक है, हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं ना। हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, हाइड्रोजन का सोर्स है एक एनर्जी का को एंजाइम जो है NADPH2। NADPH2 हाइड्रोजन डोनेट करके खुद ऑक्सीडाइज हो गया तो NADP प्लस हम लिखेंगे। दो हाइड्रोजन दे दी किसको, इस सबस्ट्रेट को, इसके भी 12 मॉलिक्यूल हैं भाई, मॉलिक्यूल्स लॉस नहीं हो रहे, 12 ही मॉलिक्यूल 3PGA के हैं, 12 ही मॉलिक्यूल 1,3-बाई-PGA के हैं। एंजाइम है हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन का सोर्स, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है 1,3-बाई-PGA का, ऑक्सीडेशन हो रहा है NADPH2 का। तो रिडक्शन हुआ, इसने हाइड्रोजन ली 1,3-बाई-PGA ने, 2 हाइड्रोजन लेके ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया। तो देखिए 1,3-बाई-PGA अगर एल्डिहाइड में चेंज हो तो ये चेंज हो 1,3-बाई-PGAL, 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। एसिड होते हैं रिड्यूस एल्डिहाइड्स में। तो जब रिड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पे 1,3-बाई-PGAL है। ठीक है, ये इनस्टेबल प्रोडक्ट है क्योंकि ये जो 2 फॉस्फेट है ये इसके ऊपर गेन नहीं होती है एल्डिहाइड पे, तो ये तुरंत एक फॉस्फेट को लॉस कर देता है, फर्स्ट पोजीशन वाली को, तो ये बन जाता है 3PGAL। बाय लूजिंग इट्स 1 फॉस्फेट, फर्स्ट पोजीशन की फॉस्फेट को लॉस करेगा और ये 3PGAL में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप डायरेक्ट दिखाया जाता है क्या, कि 1,3-बाई-PGA से 3PGAL बन गया। एक साथ 2 काम हो गए, एक तो फॉस्फेट चली गई, दूसरा एसिड से एल्डिहाइड बन गया। ये 2 काम एक साथ दिखाए जाते हैं। तो यहां पे हम दिखाएंगे माइनस, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4, कि भाई H3PO4 वापस भी जाएगा, तब ये क्या बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और 12 ही मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, 12 ही मॉलिक्यूल बनेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के। चलिए इसको भी हम जो है रिएक्शन वाइज पढ़ते हैं कैसे क्या हुआ। Okay, so here we are having the 3PGAL, 1,3-by-PGA we are having. So we are having 1,3-by-PGAL. Okay, this is the 1,3-by-PGA. यहाँ पे H था वो इसमें जा चुका ना, H2PO3, ये 1,3-बाई-PGA है। तो यहाँ पे देखिए 2 काम एक साथ होते हैं, एक तो हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन आने का सोर्स है NADPH2, ये NADP में चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स भी लॉस हो गए, प्रोटॉन्स भी, 2 हाइड्रोजन इससे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, इस सबस्ट्रेट को मिलेंगे, तो इसलिए इसका रिडक्शन हुआ है। प्लस इसमें से H3PO4 लॉस्ट भी होगा भाई, H3PO4 लॉस्ट भी होगा, तब जाके 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा। देखिए जॉइंट रिएक्शन है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लिखना शुरू करते हैं भाई। CH2OP, ये एज इट इज फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, सेकंड पोजीशन भी एज इट इज CHOH। थर्ड पोजीशन पे देखिए क्या है, मैं यहां लिखता हूं COH2PO3, ये इस तरह से है।
ठीक है, यहां मैंने बताया था, इसको हम H2PO3 बोलते हैं। हमें बाहर भेजना है H3PO4। H3PO4 बाहर भेजने के लिए यहाँ एक तो हाइड्रोजन की डिमांड है, एक ऑक्सीजन की डिमांड है। ठीक है, H3PO4 बाहर भेजने के लिए यहाँ एक हाइड्रोजन चाहिए, एक हमें ऑक्सीजन चाहिए, तब H3PO4 बाहर जाए। तो थर्ड पोजीशन पे हमारे पास अवेलेबल है COO। ठीक है, COO अवेलेबल है, एक ऑक्सीजन मैंने इसको दे दी, तो क्या बचा CO H2PO4। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन भी अवेलेबल है हमारे पास NADPH2 से, एक हाइड्रोजन में उसमें से इसको दे देता हूं, ये हो गया H3PO4, ये बैलेंस हो गया, इसको बाहर भेज दिया भाई। चलिए आप एग्जिट हो जाइए। ठीक है, अब फाइनली ध्यान से समझिए, देखिए ये ऑक्सीजन कट चुकी, ये ऑक्सीजन इसको दे दी गई, ये ऑक्सीजन अब इसको दे दी गई, तो H2PO4 बना। इस दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन भी दे दिया गया, तो ये H3PO4 बना पूरा, ये निकल गया। लेकिन फिर भी एक हाइड्रोजन बच गई, तो वो एक हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन जो बची है इस कार्बन के साथ हमने यहां लिख दी। बाकी सब कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, बाकी सब कुछ बैलेंस हो गया। फिर रिपीट कर देता हूं क्विकली। CO था, थर्ड पोजीशन की बात कर रहे थे, यहाँ H2PO3 था, एक ऑक्सीजन दी, H2PO4 हुआ, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन दी, H3PO4 हुआ। चलिए आप बाहर जाइए, एग्जिट। एक हाइड्रोजन बता यहाँ लगा दिया, ऑक्सीजन हट चुकी थी, तो CHO एल्डिहाइड बन गया। दिस इज 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 1 2 एल्डिहाइड से नंबरिंग करेंगे 3। थर्ड पोजीशन फॉस्फेट, 3 फॉस्फो, थर्ड पोजीशन फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इसके 12 मॉलिक्यूल थे, 1,3 बाई PGA के 12 मॉलिक्यूल थे, तो 3 PGL के भी 12 ही मॉलिक्यूल बने, 12 मॉलिक्यूल्स ही बने। NADPH2, एक NADPH2 एक मॉलिक्यूल के लिए है, तो 12 मॉलिक्यूल के लिए 12 ही NADPH2 यूज होंगे, ये हम ध्यान रखेंगे। 12 ATP यूज हुए अभी तक, 12 NADPH2 एंड 12 ATPs आर यूज्ड स्टिल। ठीक है, अभी तक टिल नाउ वी हैव यूज्ड द 12 ATP एंड 12 NADPH2। और ये एनर्जी आई कहां से? ये लाइट रिएक्शंस का प्रोडक्ट है। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस। Okay, so far we have concluded the C3 cycle. So we are at here at this step, 3-phosphoglyceraldehyde के 12 molecules बन गए। Dehydrogenase enzyme भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि NADPH2 का dehydrogenation हो रहा है, so we can write dehydrogenase, और we can also write hydrogenation, क्योंकि substrate का hydrogenation हो रहा है, उसको हाइड्रोजन मिल रहे हैं 12 NADPH2 से। ये दोनों एनर्जी के सोर्स हैं, ATP and NADPH2, which are produced in the light reaction। अब इससे आगे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से हमें 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए क्या? ग्लूकोज। तो हमें तो बनाना है ग्लूकोज। जब तक ग्लूकोज नहीं बन जाता हम कहेंगे रिडक्शन ही हो रहा है। ठीक है, तब तक हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है कार्बोक्सिलेशन के बाद। तो देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेग्रीगेट होंगे। अब इससे आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स आपको याद भी रखने हैं। एक कार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट था, आगे किस तरह से सेग्रीगेट हो रही है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। ग्लूकोज भी बनेगा, रीजनरेट भी होगा। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, 12 मॉलिक्यूल्स में से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल्स में से 5 मॉलिक्यूल्स आइसोमराइज हो जाते हैं। इसके एक आइसोमेरिक कंपाउंड DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसका आइसोमर है। तो जब भी आइसोमराइजेशन होता है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में जब भी आइसोमराइजेशन होता है, एंजाइम होता है आइसोमरेज। तो यहाँ पे एंजाइम है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज ने इसको आइसोमराइज करा दिया DHAP में। तो DHAP के कितने मॉलिक्यूल बन गए? 5 मॉलिक्यूल बन गए भाई। तो 3 PGL के मैं स्लाइटली लिखता हूं एक बार, कितने बच गए? अभी 7 मॉलिक्यूल बच गए। ठीक है, ये टेम्परेरी नंबर है भाई। 12 मॉलिक्यूल थे, 12 में से कोई भी 5 आइसोमराइज हो गए DHAP में। ठीक है, आइसोमेरिज्म देखिए कैसे होता है। ये है एल्डिहाइड, यहाँ पे फॉस्फेट है, ये है आपका 3PGAL। ठीक है, सिंपली आइसोमर हो रहा है, आइसोमरेज। तो केवल जो है पोजीशन चेंज हो गई हाइड्रोजन की, CH2OPC। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिए, कीटोन ग्रुप बना दिया। चलिए भाई, अब ये दो हाइड्रोजन कहाँ जाए? ये शिफ्ट हो गए थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट हुए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, ऑलरेडी एक था, एक और लगा दिया, 2 हो गया। ओ, एक और बच गया, 2 थे ना, तो 2 ये इस तरह से लिख दिया। ये बन गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या इसको पर्टिकुलरली बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, DHA3P। थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट है ना इसमें भी, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, दैट्स इट, कोई फर्क नहीं है भाई। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इस एल्डिहाइड को कीटोन में चेंज कर दिया, आइसोमराइजेशन हो गया। तो 12, ये सपोज 12 मॉलिक्यूल थे, 6, ये 12 मॉलिक्यूल थे, हर एक मॉलिक्यूल 3PGAL है, तो बस कोई 5 DHAP में बदल गए। ये स्टेप मैंने डिस्कस किया है। देखिए एक बार स्टेप वाइज समझ में आ जाती है ये साइकिल, तो बहुत ही इजी है याद रखना। केवल
जो है स्टेप वाइज हम एक एक स्टेप से पढ़ेंगे, एक एक रिएक्शन से पढ़ेंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। उसके बाद आप क्विकली समराइज कर सकते हैं, क्विकली इसको रिमेंबर रख सकते हैं आप। ओके, हियर इज आवर वर्किंग एरिया। ओके, सो DHAP 5 मॉलिक्यूल्स हो गए, DHAP में कन्वर्ट, आइसोमराइज हो गए। चलिए अब देखिएगा, अब DHAP के 5 मॉलिक्यूल हैं, DHAP के 5 मॉलिक्यूल हैं, इसमें से 3 DHAP के 5 में से 3 मॉलिक्यूल, 3 किसके ले रहे हैं हम? DHAP के मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है, और 3 खुद 3PGAL के, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल और ले रहे हैं हम 3PGAL के। पहले ही 7 बचे हुए थे, 3 और ले लिए, तो अब टेम्परेरी नंबर क्या बच गया? 4। पहले 12 बने थे, 12 में से 5 DHAP बन गए, तो 7 बचे यहाँ पे। फिर DHAP में भी 5 में से केवल 3, अभी यहाँ पे भी 2 बच गया टेम्परेरी नंबर। टेम्परेरी नंबर के लिए मैं ग्रीन कलर यूज करता हूं। टेम्परेरी नंबर 4। टेम्परेरी नंबर 2, यहाँ 2 बचे हुए हैं क्योंकि 3 ही, तो 3 मॉलिक्यूल DHAP के, और फिर इसमें से भी 3 मॉलिक्यूल, 7 में से 3 तो 4 बचेंगे, ये मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। तो देखिए क्या होगा, DHAP जो कि आइसोमर है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन, 3 ही मॉलिक्यूल। DHAP भी 3 कार्बन का कंपाउंड है क्योंकि आइसोमर ही है, ठीक है, तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल। अब 3 कार्बन और 3 कार्बन का कोई कंपाउंड मिलकर 6 कार्बन का कंपाउंड बनाए, तो इनके एक एक मॉलिक्यूल अगर हो तो 6 कार्बन वाले के भी 1 मॉलिक्यूल, 3 है तो 6 कार्बन वाले के भी 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। 6 कार्बन का 3 मॉलिक्यूल। क्यों 3 मॉलिक्यूल? क्योंकि 3 ही इसके लिए, हमने 3 ही इसके लिए, ठीक है, वहां 4 बच गए 3PGL, यहाँ 2 बच गए डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल बन गए। एंजाइम यहाँ पे जो होता है, एंजाइम होता है एल्डोलेज, ठीक है, रेड से मैं एंजाइम दिखा देता हूं। एल्डोलेज एंजाइम इन दोनों को क्या कराता है? कंबाइन कराता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, 3 ही मॉलिक्यूल 3PGAL के, पहले तो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन के भी 3 ही मॉलिक्यूल जी, 5 में से 3, फिर 3 ही इसी के, तो 3 कार्बन 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। एक एक होता तो एक ही मॉलिक्यूल बनता, 3 लिए हैं तो 3 मॉलिक्यूल बन गए। वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल यहां तक। चलिए ये रिएक्शन दिखा भी देते हैं होती कैसे है। 3PGL लेंगे, ले लिया जी 3PGAL, फिर लेंगे डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, तो यहां होता है कीटोन ग्रुप, उसमें CH2OH, ये DHAP है, ये 3PGAL है, दोनों के 3 मॉलिक्यूल मिलकर 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाएंगे। 3 कार्बन 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाया क्या? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, CH2OP, CHOH, फिर CHOH, ठीक है, 3 बार होता है इसमें, फिर कीटोन ग्रुप, और फिर आपका ये सिंपली मर्ज कर दिया, देखिए इधर से इधर लिखा यहां तक, ठीक है, ये O यहाँ पे हमने शिफ्ट कर लिया, फिर हमने ये लिख दिया CHOH, कीटोन ग्रुप एज इट इज, ये ग्रुप एज इट इज, ठीक है, दिस विल बी CH2OH। तो ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड। 2 फॉस्फेट है इसमें, एक फॉस्फेट तो आई इसमें इसकी डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट की, दूसरी फॉस्फेट इसमें आई 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की, इसलिए इसके पास 2 फॉस्फेट है। फर्स्ट पोजीशन पे भी कीटोन की तरफ से नंबरिंग करेंगे बेटा, फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट है, 6th पोजीशन पे भी फॉस्फेट है, तो इसीलिए फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ये, ठीक है, बाइफॉस्फेट है। अभी भी ग्लूकोज नहीं बना है, यानी अभी भी रिडक्शन खत्म नहीं हुआ है भाई, ठीक है, रिडक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कब तक रिडक्शन खत्म नहीं होगा? जब तक ग्लूकोज नहीं बन जाता। चलिए तो आगे क्या होगा भाई, देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक एंजाइम होता है फॉस्फेटेज एंजाइम डायरेक्टली जो होता है फॉस्फेट को ब्रेक कर देता है। फॉस्फेटेज जो है वो फर्स्ट पोजीशन की फॉस्फेट को ब्रेक कर देगा तो फर्स्ट पोजीशन की फॉस्फेट हट गई, अब 2 फॉस्फेट नहीं रही, एक ही फॉस्फेट रह गई, कहाँ?
सिक्स्थ पोजीशन पे, तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम हुआ फॉस्फेटेज, डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर दिया। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल थे, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के भी 3 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है बेटा, इसके भी 3 ही मॉलिक्यूल हैं। इसके 3 मॉलिक्यूल में से केवल एक मॉलिक्यूल अब कैरी करने के लिए ग्रीन कलर यूज करेंगे। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 बच गए क्योंकि एक तो आगे चला गया। एक मॉलिक्यूल क्या होता है, आइसोमराइज हो जाता है, आइसोमर होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में 3 में से केवल एक, 2 बच गए, एक आइसोमराइज हो जाता है। फ्रक्टोज का आइसोमर भाई होता है ग्लूकोज, आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आइसोमरेज हुआ है सिर्फ, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर से आता है भैया ये एंजाइम, कौन सा एंजाइम, फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम फिर से आता है। ठीक है, फॉस्फेटेज को मैं पी से दिखा रहा हूं, फॉस्फेटेज। अब ग्लूकोज की 6th पोजीशन की फॉस्फेट भी तोड़ देगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज। ठीक है, क्या बना देगा, ग्लूकोज। यहां दिखा देते हैं, ग्लूकोज बना दिया जी। देखिए ग्लूकोज बन गया, लेकिन कितने मॉलिक्यूल, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक ही मॉलिक्यूल लिया, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का भी एक मॉलिक्यूल बना। फॉस्फेटेज ने एक ही मॉलिक्यूल की फॉस्फेट को तोड़ी, तो ग्लूकोज का भी एक ही मॉलिक्यूल बना। चलिए जी, ग्लूकोज बन गया, रिडक्शन कंप्लीट। ठीक है भाई, हमें तो ग्लूकोज ही मिलाना था, बल्ले बल्ले खुश हो जाओ। डार्क फेज में तो ग्लूकोज ही बनाना था ना। तो ये सारा जो महाभारत रामायण ये जो हुई ग्लूकोज बनने तक, ये कहलाता है रिडक्शन। सेकेंड स्टेप, ठीक है, किस तरह डिसवा, बड़ी मेहनत से जो है हमने ग्लूकोज बनाया भाई। अब कैरी बहुत सारी चीजें हैं, 4 मॉलिक्यूल 3PGL के बचे हुए हैं, 2 डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट के बचे हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बचे हुए हैं, और हमारे पास बचा हुआ है क्या, हमारा मोटो क्या, रीजनरेट करना। भाई ग्लूकोज तो बन गया, पर आगे भी तो कुछ करो, ये कंपाउंड वापस भी तो बनाओ, कल को ये दोबारा CO2 एक्सेप्ट करे। सो इट शुड अगेन एक्सेप्ट द CO2, दैट्स व्हाई वी हैव टू रीजनरेट द Re15BP। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रीजनरेशन। तो देखिए रीजनरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बड़ी सारी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, देखिए कैसे होंगे, ध्यान रखना है हमें। अब देखिए कैरी से लेके चलते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, चलिए ले लेते हैं हम। 2 मॉलिक्यूल ले लिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के। अब कैरी नहीं रहा तो इसको रफ कर दीजिए, ग्रीन को रफ कर देते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों खत्म हो गए। एक तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया था, 2 अब हमने ले लिए। ठीक है, एक 6 कार्बन का कंपाउंड ले लिया हमने। 6 कार्बन का कंपाउंड क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट है इसके पास, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, प्लस इसमें 4 में से 2 और ले रहा हूं मैं, 3PGL 2 ले रहा हूं। ठीक है, ब्लू कलर से लेके आते हैं। चलिए होते होते इसको लाएंगे हम, ये इस पे बीच में कहीं नहीं अड़ रहा भाई। ठीक है, कहीं भी कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। इसके भी 2 मॉलिक्यूल 3PGAL के, 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कितनी कार्बन है, 6 कार्बन। 3PGL में कितनी कार्बन है जी, 3 फॉस्फोग्लिसराइड में 3 कार्बन, और 2 ही मॉलिक्यूल लिए, तो उस ग्रीन को हम 4 से अब 2 कर देते हैं। चलिए इसको 2 करिए भाई, अब 4 नहीं रहे, अब 2 ही बचे हैं जनाब के पास, अब 2 ही बचे हैं। 5 यहां चले गए थे, 7 बचे, 3 खुद यहां चले गए, 4 बचे थे, अब 2 और ले लिए, तो अब 2 ही बचे हैं 3PGL। ठीक है, 2 हम यहां ले आए। अब 6 कार्बन का और 3 कार्बन का मिलके बनाए तो 9 कार्बन का कंपाउंड बने। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है तो 9 कार्बन वाले के भी 2 मॉलिक्यूल बने। बट मैं कहता हूं पार्ट्स में बनते हैं, 4 कार्बन और 5 कार्बन, 4 कार्बन 5 कार्बन। ठीक है, तो इनके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर पार्ट्स में बने तो भी तो भाई 2 ही बनेंगे, क्योंकि आप कार्बन डिवाइड कर रहे हो तो मॉलिक्यूल वही रहेंगे। 9 कार्बन का कंबाइंड बनाते, अगर ये 6 + 3 9 कार्बन का कंपाउंड बनाते कंबाइंड, तो 2 ही मॉलिक्यूल बनते। पार्ट्स में बन रहे हैं तो 4 वाले के भी इंडिविजुअली 2 बनेंगे, 5 वाले के भी इंडिविजुअली 2 बनेंगे। तो यहाँ पे 2 कंपाउंड बना दिए जाते हैं बेटा। एक बनाया जाता है 4 कार्बन का इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। एक बनाया जाता है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ पे कोई रिएक्शंस कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट ये मर्ज हो गए, 4 और 5 कार्बन के बन गए, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, यहां पे एंजाइम होता है आपका ट्रांसकीटोलेज।
इस रिएक्शन में एंजाइम होता है ट्रांसकीटोलेज। फिर समझेंगे 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बचे हुए थे, अब सब बैलेंस हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ सब कुछ बैलेंस हो चुका, ग्लूकोज बन चुका, अभी बस ये 2 मॉलिक्यूल और 2 यही बचा हुआ है और कुछ भी नहीं बचा हुआ। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, चौथी पोजीशन पे फॉस्फेट है, 4 ही कार्बन है इसमें भाई, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। 9 का बनना चाहिए था, 6 और 3, 6 कार्बन 3 कार्बन, 9 का बनना चाहिए था, बट पार्ट्स में बन गया 5+4, 5+4। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, इसके भी कितने 2 मॉलिक्यूल। अब इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो बचे हुए थे वो मैंने ले लिए, तो इसको अब मैं रफ कर देता हूं। ये मॉलिक्यूल तो भैया नहीं बचे अब। ठीक है, अब केवल 3 फॉस्फोग्लिसराइड के 2 ही बच रहे, वहीं पे ग्रीन है, अब ये नहीं बचा, ये 2 और ले लिए मैंने। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल DHAP के, 2 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ तो 2 ही हैं, 2 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के। तो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का कंपाउंड है। अगर ये मिलकर कुछ बनाए 7 कार्बन का बनाए, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, तो 7 कार्बन वाले का भी एक मॉलिक्यूल, इसके 2-2 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिए 2 ले रहे हैं दोनों के, तो 7 कार्बन वाले के भी 2 मॉलिक्यूल, तो ये मिलकर ही बनाते हैं सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट। ठीक है, सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट एंजाइम होता है एल्डोलेज, यहां पे भी एल्डोलेज है। 2 शुगर्स मिल गए भाई, एक 4 कार्बन की शुगर, एक 3 कार्बन की शुगर, 7 कार्बन की शुगर बना दी, क्या सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट क्यों है, क्योंकि एक फॉस्फेट इसका है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का, एक इरिथ्रोज का है। ठीक है, फिर वही फॉस्फेटेज एंजाइम एक फॉस्फेट को तोड़ देगा भाई। ठीक है, वो तोड़ देगा किसको, फर्स्ट पोजीशन वाली को, तो ये बन जाएगा सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, 7 कार्बन की शुगर, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, 1,7 नहीं रही, एक फॉस्फेट हट गया। ठीक है, चलिए अब फाइनली अब कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास आ गई एक 7 कार्बन की शुगर, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, और हमारे पास बचा हुआ है 2 मॉलिक्यूल, किसके, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बचे हुए बेटा अभी भी, किसके, इसके 3PgAl के। चलिए ये भी अब हम ले ही लेते हैं। ठीक है, फाइनली हमने ये भी ले लिए, ये मैं ले आता हूं इधर, चलिए ये भी ले आइए आप, 2 मॉलिक्यूल जो बचे हुए थे ले आया, किसके, 3PgAl के। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इस 7 कार्बन की शुगर के साथ। ठीक है, इसके भी 2 ही मॉलिक्यूल है, दिमाग लगाइए आप, सीडोहेप्टुलोज 1,7 के 2 मॉलिक्यूल थे, तो इसके भी 2 ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल, एक 7 कार्बन की शुगर के 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन की शुगर के, 2 मॉलिक्यूल 7 कार्बन की शुगर, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन की शुगर। अगर 10 कार्बन की शुगर बन जाए तो कितने मॉलिक्यूल बने, 2 ही। चलिए 10 की नहीं बनी, 5 और 5 की बन जाए, 5 कार्बन की एक, 5 कार्बन की एक, तो इनके भी भाई 2-2 ही तो मॉलिक्यूल बने, इसके भी फिर आप 2 मॉलिक्यूल और इसके 2 मॉलिक्यूल। तो ऐसा ही होता है जब ये 3 फॉस्फोग्लिसराइड के लास्ट 2 मॉलिक्यूल से मिलते हैं, किसके, सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट, तो ये 2 शुगर्स बनाते हैं। एक शुगर तो बनाते हैं 5 कार्बन की जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल, तो पहले ही 2 इसके थे, इससे बने थे 2 और आ गए, तो टोटल इसके कितने 4 मॉलिक्यूल हो गए इस शुगर के, किस शुगर के, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के। दूसरी 5 कार्बन की शुगर ये बनाते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल। देखिए इसने 2 शुगर बनाई, 7 + 3, 5 की एक, 5 की एक, 5 की एक है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, पहले ही बनी हुई थी तो हमने उसी में 2 मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, ये वाले ऐड हो गए। दूसरी 5 कार्बन शुगर बनाई राइबोज 5 फॉस्फेट, तो ये हमने यहां दिखा दी राइबोज 5 फॉस्फेट। अब देखिए क्या होगा, अब आपके पास 5 कार्बन की 2 शुगर हैं, हमारे पास 5 कार्बन की 2 शुगर है भाई। ठीक है, एक शुगर है हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट, एक शुगर है हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट। चलिए हमारे पास है 2 शुगर्स, एक शुगर है हमारे पास ये राइबोज 5 फॉस्फेट, 5 कार्बन की ये शुगर है, इसके 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास। एक शुगर है हमारे पास ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, अब लास्ट में यही बची ना भाई, और तो कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, सारा साइकिल हमने कंप्लीट कर लिया, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट ये भी एक है, इसके कितने मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल।
तो 4 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके, ये भी 5 कार्बन की शुगर, ये भी 5 कार्बन की शुगर, ठीक है। तो इन दोनों का ही आइसोमर एक दूसरी शुगर होती है, क्या, राइबुलोज 5 फॉस्फेट। राइबुलोज 5 फॉस्फेट एक शुगर है जो इन दोनों का आइसोमर है। तो भैया ये दोनों ही आइसोमराइज हो जाते हैं इसमें। तो 4 मॉलिक्यूल यहां से आए, ठीक है, यानी 4 मॉलिक्यूल जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के बन गए क्या, राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल यहां से बने। तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट मैं यहां पे बना देता हूं, राइबुलोज 5 फॉस्फेट एक शुगर है, इसके टोटल 6 मॉलिक्यूल बन गए, 4 तो यहां से, ठीक है, 4 यहां से आइसोमराइजेशन के थ्रू, आइसोमेरेज, 2 यहां से, भाई 2 ये भी तो आइसोमराइज हुआ, ठीक है। तो टोटल 6 मॉलिक्यूल बन गए किसके, राइबुलोज 5 फॉस्फेट के। राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट नहीं बना है, ध्यान रहे, राइबुलोज 5 फॉस्फेट बना है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट बना है, ठीक है। अब हमें बनाना राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, यानी हमें फॉस्फोरस चाहिए। फॉस्फोरस का सोर्स होता है एटीपी, एटीपी सोर्स होता है फॉस्फोरस का, ठीक है। तो हम एटीपी यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, राइबुलोज 5 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं जी, इसके मॉलिक्यूल हैं 6। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबुलोज 5 फॉस्फेट को हम करेंगे, एंजाइम होगा काइनेज, यहां पे एंजाइम होगा काइनेज। तो 6 एटीपी यूज करेंगे, 6 एटीपी 6 एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा डायोस फॉस्फेट, और वो 6 फॉस्फेट इसको दे दी जाएंगी, ठीक है। तो जब राइबुलोज, चलिए एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, राइबुलोज 5 फॉस्फेट को अगर एक फॉस्फेट मिल जाए, ठीक है, तो वो उसको पहली पोजीशन पे ले लेगा, वो बन जाएगा राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट हो गए ना, अब एक एटीपी की वजह से हो गई। तो 6 के 6 मॉलिक्यूल पे यही काम होगा, इसलिए 6 एटीपी हो गए। तो इस काम के बाद, एटीपी के बाद वापस से क्या बन गया, RU15BP बन गया। तो देखिए रीजनरेशन हो गया भाई अपने आप। हमारा ग्लूकोज चाहिए था, ग्लूकोज भी बन गया, डार्क फेज में ग्लूकोज चाहिए, प्लस रीजनरेशन भी हो गया, प्लस रीजनरेशन भी हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया रीजनरेशन, यहां के बाद ये सारा रीजनरेशन है, यहां तक ये सारा क्या है, रीजनरेशन ऑफ RU15BP। तो स्टेप वाइज स्टेप हम पढ़ेंगे, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा अगर एक एक स्टेप हम पढ़ेंगे। मैं क्विकली समराइज करता हूं, ठीक है। पहला प्रोडक्ट हम यहीं से लेके चलते हैं, RU15BP 5 कार्बन का कंपाउंड है, कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 ऐड होती है, 6 कार्बन का इकट्ठा नहीं बनता, 2 पार्ट्स में बनता है, क्या, 3 कार्बन, ठीक है। क्योंकि ये ज्वाइंट हो जाते हैं, 6 इसके, तो 12 मॉलिक्यूल बन जाते हैं इस 3 कार्बन कंपाउंड के, जिसको कहते हैं 3PGA। पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं, इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। इसका फिर होता है काइनेज एक्टिविटी, एटीपी यूज होते हैं, ठीक है। एटीपी यूज होकर 12 मॉलिक्यूल से 12 एटीपी यूज होंगी, 1,3 बाईपीजी, 2 फॉस्फेट हो गई, एटीपी से फॉस्फेट मिलती है। फिर इसका रिडक्शन होगा, ये रिड्यूस हो गया एल्डिहाइड में, फॉस्फेट बाहर निकल गई, इसलिए पहली पोजीशन की फॉस्फेट बाहर निकल गई। इन 12 मॉलिक्यूल्स में से 5 मॉलिक्यूल आइसोमराइज हो गए DHAP में, यहाँ 7 बच गए, ठीक है। इन 5 में से भी 3 और फिर खुद 3 और, यानी यहाँ 4 बच गए, ये मिलकर 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फॉस्फेटेज तोड़ता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेटेज एंजाइम ग्लूकोज की 6th पोजीशन की फॉस्फेट को तोड़ देगा, ग्लूकोज बना देगा। एक पूरा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिल गया हमें, जो डार्क फेज में हमें चाहिए था, फूड बन गया, ठीक है। अब हमें करना है रीजनरेशन। तो यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के टोटल 3 मॉलिक्यूल थे, एक ही ग्लूकोज बनाया, अभी भी 2 बच गए, तो वो 2 हमने ले लिए, और यहाँ पे 4 में से 2 मॉलिक्यूल 3PGAL के ले लिए। ये तो 6 कार्बन की शुगर, 3 कार्बन की शुगर, 9 की शुगर बननी चाहिए थी, बट जॉइंटली नहीं बनी, एक 4 की बनी, एक 5 की। दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल बने, क्योंकि यहाँ भी 2 ही मॉलिक्यूल थे, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल बने इरिथ्रोज के, 2 बने जाइलुलोज के। फिर इरिथ्रोज ने DHAP में 2 बचे हुए थे, यहाँ 3 ही लिए थे हमने, उनके साथ फाइनली क्या हुई, रिएक्ट हुई। तो 4 कार्बन शुगर, 3 कार्बन शुगर मिलकर 7 कार्बन की एक शुगर बनाई, जिसमें 2 फॉस्फेट है, सीडोएप्टिलोज 1,7 बाइफॉस्फेट, एक इसका फॉस्फेट, एक इसका फॉस्फेट। फॉस्फेटेज ने ब्रेक डाउन किया, पहली पोजीशन की फॉस्फेट हट गई, सीडोएप्टिलोज 7 फॉस्फेट बच गया, ठीक है। सीडोएप्टिलोज 7 फॉस्फेट फाइनली जो 2 मॉलिक्यूल बचे हैं लास्ट 3PGL के, इनको एक्सेप्ट करता है। तो 7 कार्बन की शुगर और 3 कार्बन की शुगर मिलकर 10 कार्बन की शुगर बननी चाहिए थी, बट पार्ट्स में बनती है 5 और 5, क्योंकि 2-2 मॉलिक्यूल है, तो इन शुगर्स के भी 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एक 5 कार्बन की तो बनी जाइलुलोज, तो 2 हमने ऐड ही कर दिए, क्योंकि जाइलुलोज पहले ही बना हुआ था। जाइलुलोज के टोटल 4 मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास। यहाँ पे राइबोज दूसरी 5 कार्बन शुगर बनी, इसके भी 2 मॉलिक्यूल। ये दोनों ही 5 कार्बन शुगर्स आइसोमर होती है राइबुलोज 5 फॉस्फेट का, तो ये आइसोमराइज हो गए, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल 6 मॉलिक्यूल बन गए राइबुलोज 5 फॉस्फेट के। फाइनली 6 एटीपी और यूज किए जाते हैं, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनाया जाता है,
ठीक है, राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट बना दिया क्योंकि एक फॉस्फेट और आ गया एटीपी से, एंजाइम होगा काइनेज। तो टोटल एनर्जी यूज, ठीक है, डार्क फेज में टोटल एनर्जी यूज की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है C3 साइकिल में। कितनी ज्यादा? 12 + 6 18 तो एटीपी यूज होते हैं, 12 NADPH2 यूज होते हैं। 12 NADPH2 36 एटीपी के बराबर होते हैं, एक 3 के बराबर, तो टोटल 36 के बराबर। 36 + 18 54 एटीपी यूज होते हैं भाई, 54 एटीपी पूरी में यूज होते हैं किसमें? C3 साइकिल में, ठीक है। सो दिस इज वाज दी C3 साइकिल। सो इट वाज अबाउट दी C3 साइकिल। स्ट्रक्चरली भी इंपॉर्टेंट होती है, जो जो स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने स्ट्रक्चरली आपको बताया किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है तो एटीपी के ऊपर या सबस्ट्रेट या एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी के जो एग्जाम होते हैं पूरी साइकिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पाथवे को किसी भी बुक से रेफर कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दी C3 साइकिल। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड टाइम।